مسیح میں آپ سب کو سلام. ہم ایک نعرہ لگائیں گے ہلیلویا. سبھی مل کر دہنا ہاتھ آسمان کی طرف بلائیں. ہلیلویا. زور سے ہلیلویا. آمین. ابلیس اس نعرے سے کیا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی تعریف عبادت ہو اور ہمیشہ ہوتی رہے. فرشتگان بھی یہی لگاتے ہیں, ہر زبان میں یہ لگایا جاتا ہے. یہ آسمانی نعرہ ہے. اور ہم کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے وائز کی کتاب, اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیت. یہ وائز کی کتاب سلیمان نبی نے لکھی. کس نے لکھی؟ سلیمان نبی نے. یہ بھی کتاب جس طرح مثال کی کتاب سلیمان نبی نے لکھی وہ حکمت کی کتاب ہے, یہ بھی حکمت کی کتاب ہے. اس میں بھی حکمت کی وہ باتیں ہیں جو بیان سے باہر ہیں. اور آج وائز کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 4 آیت, جس میں یوں لکھا ہے, ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے, مر جانے کا ایک وقت ہے, درخت لگانے کا ایک وقت ہے, اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے, مار ڈالنے کا ایک وقت ہے, اور شفا دینے کا ایک وقت ہے, ڈھانے کا ایک وقت ہے, اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے, اور رونے کا ایک وقت ہے, اور ہنسنے کا ایک وقت ہے, غم کھانے کا ایک وقت ہے, اور ناچنے کا ایک وقت ہے. خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. یہاں پر یہ جو میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں, یہ 4 آیتیں فضول نہیں ہیں, بیکار نہیں ہیں, کیونکہ یہ کیا ہے؟ خدا کے کلام کی منہ کی باتیں ہیں. خداوند کے بندہ نبی سلیمان نبی نے حکمت کی باتیں کہی ہیں. ہر چیز کا ایک موقع ہے. امیر ہونے کا بھی, لوگ کہتے ہیں میں امیر ہو جاؤں, پیسہ سامنے کا بھی ایک موقع خدا ضرور دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ضرور دیتا ہے. آپ کو مکان چاہیے تو اس کے لیے بھی خدا آپ کو چانس ضرور دے گا, ایک موقع ضرور دے گا, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہتا. اور کوئی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی خدا کیا کرے گا؟ ایک موقع ضرور دے گا. اور جس کی سوچ سیاستدان کی ہے کہ میں ایک سیاستدان بن جاؤں, خدا اس کو بھی ایک موقع ضرور دے گا. کوئی کہتا ہے کہ میں ٹیچر کا شعبہ اختیار کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے پاس تعلیم نہیں ہے, اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے تعلیم کو بڑھانے کے لیے, لیکن خدا اسے بھی کیا کرے گا؟ ایک موقع ضرور دے گا. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, وسائل نہیں ہے, تو خدا کیا کرے گا؟ وسائل پیدا کرے گا اور اسے ایک موقع ضرور دے گا, اور اسے کہے گا اپنا قدم آگے بڑھا. آمین. ہر چیز کا خدا کیا کرتا ہے؟ جس آپ شعبے میں ہیں خدا آپ کو کیا دیتا ہے؟ ایک موقع دیتا ہے. اور خدا توبہ کرنے کا بھی ایک موقع دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر ایک موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لے. اور جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد خدا موقع نہیں دیتا. اس کا یہی ایک موقع ہے کہ جب تک اسے زندگی دی گئی ہے اس زندگی کے اندر وہ کیا کرے؟ توبہ کر لے اور خدا کی ستائش کرے. اور آگے لکھا ہے ہر چیز کا ایک
मौका है और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। कुछ लोग ये करते हैं कि वक्त से पहले हर काम को करना चाहते हैं और वो काम क्या होता है, क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। वो काम तो करते जरूर हैं लेकिन काम ठप हो जाता है, चंद दिनों के बाद बिल्कुल ही खत्म। वो ये क्या है कि मौका मिला और आसमान के नीचे जितने काम होते हैं खुदावन ने क्या किया हुआ है, उनका एक वक्त ठहराया हुआ है। दाऊद नबी अपने ज़बूर में कहता है, ज़बूर 90 के अंदर लिखा है कि मैं बेतरतीब क्या था, मादे की मानद था और मेरी शक्ल भी नहीं बनी थी और मेरा लक़ब तुझसे छुपा ना था। तू तो मेरे हर एक अय्याम को उस वक्त से जानता है जब मैं अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादे की मानद था और मेरा लक़ब तुझसे छुपा ना था। उसका लक़ब क्या था आपको पता है? वो एक भेड़ बकरियों को चुराने वाला कौन था? चरवाहा था। खुदा ने उसे एक मौका दिया, उसे क्या कर दिया? बादशाह बना दिया। ये उसका लक़ब था, खुदा ने उसे चुना हुआ था और उसने खुदा के वक्त का क्या किया? इंतजार किया। उससे पहले एक और बादशाह था, वो पहला बादशाह था बनी इस्राएल का और उसे भी खुदा ने मुकर्रर किया था। किन की अपील पर? लोगों की अपील पर। ये दाऊद बादशाह किसकी अपील पर आया था? खुदा की अपील। खुदा ने उसे एक मौका देना था कि तू बादशाही करे और फिर बादशाही उसके जब उसे मिली तो उसकी नस्ल से चलती चलती खुदा यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है उस तक पहुंच गई। आमीन। कि जमीन के ऊपर क्या है, हर चीज के लिए जो आसमान के नीचे जो काम होता है उसका खुदा ने क्या किया हुआ है, एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। हम वक्त से पहले और चीज पा लेना चाहते हैं, ले लेना चाहते हैं, लेकिन खुदावन ने हर चीज का क्या किया है, एक वक्त मुकर्रर किया है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं मिलता, मिल तो जाएगा आपको। खुदा अपने ममसू की बात तो सुन लेगा, अपने लोगों की बात तो सुन लेगा, लेकिन जो खुदावन ने वक्त ठहराया है उससे पहले दे देगा, वो चंद दिन की होगी। जब आप उसके वक्त पर खुदावन आपको अपने वक्त पर देगा वो हमेशा रहेगी, जितना बादशाही दाऊद के नस्ल से हमेशा तक रहेगी। आमीन। वो किस तरह हमेशा तक रहेगी, कोई बता सकता है? अभी मैंने आपको बताया, वो खुदावन यीशु मसीह उसकी नस्ल से आया और वो क्या हुआ, बादशाहों का बादशाह हो गया और आसमान पर भी उसका तख्त लगा है और वहां पर भी वो क्या कर रहा है, बादशाही कर रहा है। आगे कहता है पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। इंसान जब पैदा होता है खुदावन ने उसका क्या किया है, एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है और जो वक्त उसका मुकर्रर किया हुआ है वो उसकी जिंदगी का वक्त है। जब वो पैदा होगा उसकी जिंदगी में ये वक्त उसकी जिंदगी में आया है। कुछ बच्चे 7 महीने में पैदा होते हैं, लोग कहते हैं वो बचते नहीं। कुछ बच्चे 8 महीने में पैदा होते हैं, लोग कहते हैं कि ये भी नहीं बचेंगे। जो पूरे दिन के होते हैं लोग कहते हैं ये बच्चा बच जाएगा। लेकिन मैं ये चीज जानता हूं जो खुदावंद ने वक्त मुकर्रर किया है, जो 7 महीने के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी बच जाते हैं, क्योंकि खुदावंद ने उसके लिए वक्त मुकर्रर किया है। मैंने ऐसे बच्चे बहुत से और ऐसे बहुत से देखे हैं। आमीन। जिन लोगों का खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं उनके बच्चे नहीं बचते। जिन लोगों का ईमान है कि वक्त अपने वक्त पर आया है वो बच जाता है और वो खुदा का सुरमा भी बन जाता है। कहता है पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है।
लोगों को मौत से बहुत क्या लगता है, डर लगता है। मौत से क्या लगता है, डर लगता है। और अय्यूब की मिसाल आपने सुनी होगी। अय्यूब क्या था, साबर था, उसके ऊपर मुसीबत आई, मौत ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने फिर भी ना डरा, फिर भी क्या ना हुआ, ना डरा। सारे नबियों ने, सारे लोगों ने क्या करना है, मौत का मजा चखना है, मौत का मजा चखना है, और ये मजा लेना पड़ना है। कोई ये कि मुझे मौत ना आए तो वो बेवकूफ शख्स है। बाइबल कहते हैं वो क्या है, बेवकूफ शख्स है। हम आए हैं और हमने वापस जरूर जाना है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। और कुछ लोग ये कहते हैं चंद साल और थानू जिंदगी मिल जाए, ओ ऐसी मरिए ना, ओ मरन तो बड़ा डर लगता जी। जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर मौत का डर, उनके ऊपर मौत का डर नहीं, और उनके ऊपर मौत का डंग नहीं रहा। मौत का डंग कैसे आता है, डंग कौन कौन सी चीज मारती है भाभी जी, आप बताएं कौन सी चीज डंग मारती है, सांप और बिच्छू और भी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो डंग मारती हैं। वो क्या करती हैं, डंग मारती हैं, और इंसान क्या होता है, जहरीला जहर होता है, मर जाता है। और पुलिस उसूल कहता है मौत का डंग अब हमारी जिंदगी में नहीं रहा। मौत का डंग क्या है, ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई, वो जी नस फट गई, बंदा मर गया। शुगर की बीमारी, उससे क्या हो गया, अटैक हो गया, शुगर का अटैक हो गया, मर गया। दिल की बीमारी लग गई जी, दिल का अटैक हो गया, मर गया। ये क्या है, मौत का डंग। बुखार आम बुखार चढ़िया सी बच्चे नू, बच्चा मर गया। ये क्या है, मौत का डंग। खुदा कहता है कि इन बीमारियों से ना डरो। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ हल्का और मुलायम है और मेरे पास आ जाओ। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारी बीमारियां उठा ली और तुम्हारे गुनाह मैंने ले लिए, अब तुम्हें मौत का डर नहीं रहा। आमीन। अब आपने मौत से डरना है कि मौत को डराना है। पौलुस रसूल ने मौत को क्या किया, डरा दिया। कहना मरना जीना मेरे लिए क्या है, नुकसान है, और मरना मेरे लिए क्या है, नफा है। कैसे उसके लिए नफा है, यीशु मसीह में रहते हुए उसे दुनिया में कोई ना कोई उससे बात ऐसी हो जाती होगी जिससे गुनाह पैदा होता होगा। कहता है खुदा मुझे आसमान पर ही उठा ले, अब मैं तैयार हो चुका हूं, मैं तेरी मानद हो चुका हूं, मुझे आसमान पर उठा ले, मुझे मार दे, क्योंकि मुझे मौत का डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तेरे हुजूर में पहुंच जाऊंगा। और हमें भी मौत से डरने की जरूरत नहीं। जितने मसीह यीशु में हैं उनको मौत से डर नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग मातम बड़ा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में मातम 3 दिन का मातम, 10 दिन का मातम और 40 दिन का मातम लिखा हुआ है कि नबियों ने अपने अजीजों के लिए और अपने लिए जो नबियों के बच्चे थे उन नबियों के लिए उन्होंने किया। और यीशु मसीह कहता है कि मातम नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा मातम नहीं करना, तुम्हारी रोना हंसी से बदल जाएगा। क्योंकि जितने यीशु मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि जिंदा हैं, वो आसमान पर हैं, और वो आसमान पर जाते हैं, पाताल में वो नहीं जाते। आपने लाजर की मिसाल तो सुनी होगी कि वो क्या करता था, वो जो अमीर शख्स था उसके टुकड़े जो था वो बचाता था, जो उसके कुत्ते खाते थे वो टुकड़े वो क्या करता था, खाता था, और वो सब्र करके बैठा हुआ था। और जब दोनों मर गए वो एक किधर गया,
बाप इब्राहिम की हुई। बाप इब्राहिम, वो कौन था? वो लाजर था जो आग की भट्टी में गया। वो कौन था? वो अमीर शख्स जो जहां पर बड़े फ्रूट, बड़े अच्छे लिबास, बड़ियां अच्छियां चीजां ते गरीबां नूं कोई पुछना नहीं, किसी नूं कोई पुछना नहीं। उन्होंने की मिलिया? दोज़ख की आग। उसने क्या खुदावंद मेरे 5 भाई नीचे हैं और मेरी सोबत में रहे हैं, तो वो भी क्या है? ऐसे ही हैं, तो मुझे एक दफा जाने दे। उसने कहा मुझे 1 घंटे के लिए जाने देगा। नहीं, जो तू कर रहा है तुम्हें एक मौका दिता था, तेनू मीर भी बनाया, तेनू हर एक चीज दी सी, लेकिन तू उस मेरी से खुदा नू भुल गया। खुदावन को भूलना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, मौत का डर रखना चाहिए। आप किस में हैं? मसीह यीशु में। कौन से मसीह यीशु में? लेबल वाले? जिंदा मसीह के। हालेलुया, जिंदा मसीह के, क्योंकि हम जिंदा मसीह के हैं और जिंदा मसीह के पास जाएंगे। और आगे लिखा है कि दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। ये जो दरख्त है ये क्या है? जो हम पौधा लगाते हैं उसको हम पानी देते हैं और बढ़ता है और एक दरख्त बन जाता है। और खुदावंद कहता है मैं ही उसे लगाता हूं और मैं ही उसे उखाड़ता हूं और मेरे कहे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये दरख्त आप हैं, आपकी मिसाल दी गई है, यहाँ पर मौत की मिसाल दी गई है कि आपको मौत का डर नहीं होना चाहिए। खुदावंद ने आपको दुनिया में भेजा है और उसने आपको उस दुनिया में से ले लेना है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का भी एक वक्त है। खुदावंद मार डालता भी है और शिफा भी देता है। कैसे मारता है? आप गुनाह में हैं, आपके ऊपर कोई मुसीबत लाएगा कि आप सीधी राह पर आ जाए। आप नहीं आएंगे तो आपको क्या होगी? मौत हमला होगी और वो क्या करेगी? गुनाह को जन्म देगी और आप दुनिया में से मिट जाएंगे। और जो लोग तौबा कर लेते हैं वो क्या करते हैं? शिफा पाते हैं। वो क्या करते हैं? शिफा पाते हैं। और अय्यूब नबी इस तरह बयान करता है कि जो कोई गुनाहगार होगा, ईमानदार उसके लिए दुआ करेगा और वो क्या करेगा? अपने गुनाहों से बच जाएगा और शिफा भी पा जाएगा। वो कैसे दुआ होगी? ईमानदार जाएगा, उसे क्या करेगा? यीशु मसीह के बारे में बताएगा कि तू तौबा कर ले और अपनी बीमारी से क्या कर? बच जा। और मैं तेरे लिए दुआ करता हूं तू यीशु मसीह पर ईमान रख, तू भी और तेरे गुनाह भी बख्शे जाएंगे और तू शिफा पा जाएगा। आमीन। और डा देने का एक वक्त है और तमीर करने का एक वक्त है, और रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त खुदावन ने मुकर्रर किया है। खुदावन कहता है डा देने का भी एक वक्त है और तमीर करने का भी एक वक्त है। तमीर कैसे किया जाता है? आप किसी मकान को बना रहे हैं, उसको तमीर करने के लिए क्या करेगा? खुदा आपको रुपया पैसा देगा। क्या करेगा? और आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि आपके पास आसमान खुल जाएगा और रुपये पैसे आएंगे। आप अपने बच्चे का घर बसाना चाहते हैं, उसे तमीर करना चाहते हैं, उसके लिए एक बहू चाहते हैं या अपनी बेटी को ब्याना चाहते हैं, तो खुदा उसके लिए भी क्या करेगा? आपको तमीर करेगा। वो कैसे तमीर करेगा? आप अपनी बेटी का जहेज बनाना चाहते हैं, आपके पास रुपया पैसा नहीं, आप किससे फरियाद करेंगे? अपने साथ वाले घर से, दाएं वाले हाथ वाले घर से, सामने वाले या पीछे वाले से? किससे? ये सारे लोग जो आसपास हैं आपके, ये आपको क्या करेंगे? नहीं जी, साढ़े को ऐसे यही जवाब होगा, नहीं जी।
पाए जेब जी कौन तो की नाल की निकलेगा की निकलेगा नहीं तो खुदावंद को की निकलेगा हाँ क्योंकि उसने आपके लिए क्या किया है एक वक्त मुकर्रर कर दिया है और उस वक्त के ऊपर खुदा आपको क्या करेगा शर्मिंदा नहीं होने देगा चाहे आप घर बनाएं चाहे आप गाड़ी लें चाहे आप अपने बच्चे की शादी करें क्योंकि खुदावंद ने ये सारे वक्त आपके लिए क्या किए हैं मुकर्रर कर दिए हैं आपकी बरकत के लिए आप बरकत लेना चाहते हैं तो बरकत लेंगे आप लाना लेना चाहते हैं तो लालच लेंगे क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है वो कैसे डिपेंड है कि आप खुदावंद की इबादत करेंगे तो आपके ऊपर बरकत आएगी आप उसकी इबादत नहीं करेंगे तो क्या होगी लानत आएगी ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है और हंसने का एक वक्त है और गम खाने का एक वक्त है और नाचने का भी एक वक्त है किसका नाचने का मुकद्दस में लिखा है नाचना खुदावंद को पसंद नहीं यहाँ पर कहता है नाचने का भी एक वक्त है कि तुही वक्त दे उत्ते मसीह दे विच की कर सकते हो की कर सकते हो नाच सकते हो किदे विच मसीह दे विच तुही अपनी बच्ची दी या अपने बच्चे दी शादी कर दियो तो तुही मसीह दे विच नाच सकते हो ऐ नहीं कि तुही स्टेप मारो या तुसी कोई गाने शाने लाओ ऐ नहीं या आजकल ते बड़का में चलदियां ने नाल ऐ नहीं मसीह दे विच खुश रहो ते नचो जरूर किदे विच मसीह दे विच उस वक्त दे विच ऐ ना कि तू स्टेप सीख लो तो आवां छड़ के स्टेप सीखी होंदी ऐ नहीं ठीक है हर चीज का खुदावंद ने क्या किया है आपके लिए एक वक्त मुकर्रर किया उस वक्त के अंदर आपने क्या करना है उस काम को करना है और मौत से डरना नहीं ये मैं आपको बात बता दूं मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि मौत और आलमे रवा की कुंजियां यीशु मसीह ने कहा मेरे पास है मैं जो मर गया था अब जिंदा हूं मैं जो अव्वल था आहर था अव्वल हो चुका हूं अव्वल और आहर मैं ही हूं ये लिखा हुआ है अव्वल और आहर मैं ही हूं और यहाँ पर वहां पर लिखा हुआ है 20 बाब में कि जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो कहां जाएगा आग और गंधक की झील में डाला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा किताबे हयात किसे कहते हैं हयात का मतलब क्या है ऊंची आवाज बोलो आपके अंदर जिंदगी है बोले हयात का मतलब क्या है और किताब जिंदगी की किताब हमेशा की जिंदगी की किताब किताबे हयात हमेशा की जिंदगी की किताब जिसका नाम उसमें लिखा हुआ ना मिला वो आग और गंधक की झील में क्या होगा डाला जाएगा आपके पास क्या है क्या है आपके पास एक मौका है मैंने सबसे पहले क्या कहा आपके पास एक ही मौका है उस मौका को गवाइए ना मेरे पास भी एक ही मौका है ये ना समझे कि मेरे पास 10 मौके हैं मेरे पास भी एक ही मौका है उस मौके के अंदर मैंने क्या करना है तौबा करनी है खुदावंद का काम करना है पूरा काम करना है जे मैं आधा काम करूंगा तो मेरा नाम भी किताब हयात में नहीं मिलेगा आमीन